Good morning, students. How are you? Fine? Okay. Our before video, we will learn about microorganisms. Certain organisms which are too small to be seen with naked eye are called microorganisms. Microorganisms are classified into four major groups. We will learn in before video. First, bacteria, fungi, algae and protozoa. Viruses are also microorganisms, but they differ from other microbes. Viruses are obligatory intracellular parasites. Virus is a connecting link between non-living and living. वायरसेस नॉन लिविंग भी होते हैं और लिविंग भी होते हैं. माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा, और मल्टीसेल्युलर, फॉर एग्जांपल स्पायरोगायरा, पेनिसिलियम, एस्पोगायरा एक्सेट्रा. Microorganism can live alone or may live in colonies. Some are free living and other are interparasites. We will learn our before video. Microorganisms can live alone. Microorganisms can survive under all types of environments, ranging from ice cold climate to hot springs and desert to marshlands. Some microorganisms are beneficial to us. They are used in the preparation of curd, bread, cake, alcohol, medicines, wine, vinegar, etc. They decompose organic wastes and convert into harmless and usable substances. Then we learn about how preparation of curd and bread. Now our today's topic is commercial use of microorganisms. Microorganisms are used for the large-scale production of alcohol, wine and acetic acid यानी कि vinegar. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. Yeast जो होता है वो प्रिपरेशन कर्ड के लिए भी यूज होता है, ऐसे ब्रेड बनाने के लिए, वैसे अल्कोहल और वाइन के प्रिपरेशन प्रोडक्शन में भी यूज होता है. फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल सुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, crushed fruits, juices, etc. Now our do one activity. Take a 500 ml beaker filled up to 3/4 with water. Dissolve 2-3 teaspoons of sugar in it. Add half a spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place from 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? आपको 500 ml का एक बीकर लेना है और उसे 3/4 वाटर से भरना है और उसके अंदर 2-3 टेबल स्पून शुगर मिक्स करना है और उसके बाद 1 स्पून यीस्ट पाउडर मिक्स करना है. उसके बाद आपको उसे कवर करके वार्म प्लेस पे रख देना है 4 से 5 घंटे तक और उसके बाद आपको स्मेल करना है. कैसी आ रही है उसकी स्मेल वो आपको ऑब्जर्व करना है और नोट डाउन करना है. जो स्मेल आपको आएगी, दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversions of sugar into alcohol is known as fermentation. जो आपको स्मेल आ रही है वो क्या है, शुगर जो आपने मिक्स की है वो डिसॉल्व हो गई है अल्कोहल में और कन्वर्ट हो गई है अल्कोहल में. इसके थ्रू इस प्रोसेस को आप जो आप शुगर को कन्वर्जन करते हो शुगर में से अल्कोहल में, इसके थ्रू उसे कहते हैं फर्मेंशन. लुईस पेस्चर ने डिस्कवर्ड की थी फर्मेशन प्रोसेस इन 1857 में. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स.
Whenever you fall ill, the doctors may give you some antibiotic tablets. आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको डॉक्टर्स एंटीबायोटिक टेबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, सच एज अ पेनिसिलिन. The source of these medicines is microorganism. और इन सब medicines का जो main source है वो है microorganisms. These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. और जो हमारे लिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज के थ्रू हमने जो मेडिसिन बनाई होती है वो किल करते हैं और जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका ग्रोथ स्टॉप कर देते हैं और डिसीज को रोकते हैं. सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक. और जो ये किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका ग्रोथ रोकते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो मेडिसिन बनती है उसे कहते हैं एंटीबायोटिक्स. These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi, streptomycin, tetracycline, and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. जो फंगी एंड बैक्टीरिया में से जो मेडिसिन बनती है एंटीबायोटिक्स लाइक सेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर कॉमनली यूज्ड एंड antibiotics and its produce made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure and varieties of disease. ये एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने के स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं और वेराइटीज मेनी टाइप्स ऑफ वेराइटीज जो डिजीज होते हैं उसके लिए एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज होती है. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infections in animals. जो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो मिक्स करके बनाते हैं वो लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री जैसे जो इन्फेक्शंस होते हैं जो एनिमल्स में होते हैं उसके लिए भी यूज होती हैं. दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट्स डिसीज. और ये जो एंटीबायोटिक्स होती है वो प्लांट्स के मेनी टाइप्स ऑफ डिसीज के लिए भी यूज होती हैं. It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. हम जो वो इम्पोर्टेंट है हमें याद रखना चाहिए जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो कोई भी डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर हो उसकी एडवाइस के थ्रू ही ले. Also you must complete the course prescribed by the doctor. और जो हमें डॉक्टर लिख देते हैं उसके हिसाब से हमें उसका कोर्स कंप्लीट करना चाहिए. If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need in a future. अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक्स जो आपको नीडेड नहीं होती है उसका डोज ले लेते हैं, रॉन्ग डोजेस ले लेते हैं तो आपको उसका जो ड्रग्स होता है वो अफेक्ट करता है लॉन्ग टाइम फ्यूचर में. Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. अगर आपको कोई भी एंटीबायोटिक्स जरूरत नहीं होती तो भी अननेसेसरीली आप ले लेते हो तो आपकी बॉडी में जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया होते हैं उसे भी किल कर देती है जो एंटीबायोटिक्स आपने ली हो रॉन्ग डोजेस. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. जो आपको वायरस इसके थ्रू जो कोल्ड और फ्लू होता है उसमें वर्क नहीं करती है, इफेक्टिव नहीं करती है जो आपने बैक्टीरिया वाली एंटीबायोटिक्स ली हो तो. Some information about one scientist. In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. Alexander Fleming वो कल्चर में डिसीज कैसे होते हैं बैक्टीरिया के थ्रू उस पे वर्क कर रहे थे. Suddenly he found the spores of a little green moles
in one of his culture plates. उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें सडनली उसने देखा उसमें से स्पोर्स निकल रहे थे, लिटिल ग्रीन मोल्स. ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्स प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. और वो थे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, उसे प्रिवेंट कैसे करे. इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया. From this the moles penicillin was prepared. और उसके थ्रू उसने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर की. यानी कि पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स होती है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में प्रिपेयर की. Okay students, our today's topic you are all understand easily. I hope so you are understand easily, and our next portion we will learn in next video. Thank you for watching this video. Thank you. Wheat, rice, crushed fruits, juices, etc. Now our do one activity. Take a 500 ml beaker filled up to 3/4 with water. Dissolve 2-3 teaspoons of sugar in it. Add half a spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place from 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? आपको 500 ml का एक बीकर लेना है और उसे 3/4 वाटर से भरना है और उसके अंदर 2-3 टेबल स्पून शुगर मिक्स करना है और उसके बाद 1 स्पून यीस्ट पाउडर मिक्स करना है. उसके बाद आपको उसे कवर करके वार्म प्लेस पे रख देना है 4 से 5 घंटे तक. और उसके बाद आपको स्मेल करना है. कैसी आ रही है उसकी स्मेल वो आपको ऑब्जर्व करना है और नोट डाउन करना है. जो स्मेल आपको आएगी, दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversions of sugar into alcohol is known as fermentation. जो आपको स्मेल आ रही है वो क्या है, शुगर जो आपने मिक्स की है वो डिसॉल्व हो गई है अल्कोहल में और कन्वर्ट हो गई है अल्कोहल में. इसके थ्रू इस प्रोसेस को जो आप शुगर को कन्वर्जन करते हो शुगर में से अल्कोहल में, इसके थ्रू उसे कहते हैं फर्मेंशन. लुईस पेस्टर ने डिस्कवर्ड की थी फर्मेशन प्रोसेस इन 1857 में. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Whenever you fall ill, the doctors may give you some antibiotic tablets. आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको डॉक्टर्स एंटीबायोटिक टेबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, such as a penicillin. The source of these medicines is microorganism. और इन सब मेडिसिन का जो मेन सोर्स है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. और जो हमारे लिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज के थ्रू हमने जो मेडिसिन बनाई होती है वो किल करते हैं और जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका ग्रोथ स्टॉप कर देते हैं और डिसीज को रोकते हैं. Such medicines are called antibiotic. और जो ये किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका ग्रोथ रोकते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो मेडिसिन बनती है उसे कहते हैं एंटीबायोटिक्स. These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. जो फंगी एंड बैक्टीरिया में से जो मेडिसिन बनती है एंटीबायोटिक्स लाइक सेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर कॉमनली यूज्ड एंड antibiotics and its produce made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and
are used to cure and varieties of disease. ये एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने के स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं और वेराइटीज मेनी टाइप्स ऑफ वेराइटीज जो डिजीज होते हैं उसके लिए एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज होती है. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infections in animals. जो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो मिक्स करके बनाते हैं वो लाइव स्टॉक एंड प्लोरेटली जैसे जो इन्फेक्शंस होते हैं जो एनिमल्स में होते हैं उसके लिए भी यूज होती हैं. दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट्स डिसीज. और ये जो एंटीबायोटिक्स होती है वो प्लांट्स के मेनी टाइप्स ऑफ डिसीज के लिए भी यूज होती हैं. It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. हम जो वो इम्पोर्टेंट है हमें याद रखना चाहिए जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो कोई भी डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर हो उसकी एडवाइस के थ्रू ही ले. Also you must complete the course प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर. और जो हमें डॉक्टर लिख देते हैं उसके हिसाब से हमें उसका कोर्स कंप्लीट करना चाहिए. If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need in a future. अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक्स जो आपको नीडेड नहीं होती है उसका डोज ले लेते हैं रॉन्ग डोजेज ले लेते हैं तो आपको उसका जो ड्रग्स होता है वो अफेक्ट करता है लॉन्ग टाइम फ्यूचर में. Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. अगर आपको कोई भी एंटीबायोटिक्स जरूरत नहीं होती तो भी अननेसेसरली आप ले लेते हो तो आपकी बॉडी में जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया होते हैं उसे भी किल कर देती है जो एंटीबायोटिक्स आपने ली हो रॉन्ग डोजेस. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. जो आपको वायरस के थ्रू जो कोल्ड और फ्लू होता है उसमें वर्क नहीं करती है इफेक्टिव नहीं करती है जो आपने बैक्टीरिया वाली एंटीबायोटिक्स ली हो तो. Some information about one scientist. In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. Alexander Fleming वो कल्चर में डिसीज कैसे होते हैं बैक्टीरिया के थ्रू उस पे वर्क कर रहे थे. Suddenly he found the spores of a little green moles in one of his culture plates. उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें सडनली उसने देखा उसमें से स्पोर्स निकल रहे थे लिटिल ग्रीन मोल्स. ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्स प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. और वो थे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया उसे प्रिवेंट कैसे करे. इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया. फ्रॉम दिस द मोल्स पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड. और उसके थ्रू उसने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर की. यानी कि पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स होती है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में प्रिपेयर की. Okay students, our today's topic you are all understand easily. I hope so you are understand easily. And our next portion we will learn in next video. Thank you for watching this video. Thank you.